Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us. And if you're preparing for any competitive examinations after your law, you're at the right place. Do subscribe to our YouTube channel, that is Legal Beat, and check out all the videos that we keep on providing you here, which are helpful in your exam preparation. And also the online courses are available on www.iexamb.com. आप इन कोर्सेज के डेमो भी एक्टिवेट करके देख सकते हैं. ईमेल अस ऑन hello@iexamb.com or you can call us on the number 9205524028 in case of any queries. Download our app for 50% faster job preparation. Today's video I have made for all those who are preparing for SEBI Grade A Legal Officer exam. If you really want to be a part of this institution, अगर आप SEBI में अपने आप को law officer देखना चाहते हैं, then don't just wait for the notification to come. If you want to really see yourself there, you have to start your preparation early. SEBI Grade A Legal Officer exam is expected in 2025, but then you have to start your preparation. And if you are a fresher, then you have to start preparing for the examination as soon as possible. I know when we don't have exact time or at least a tentative guideline is not there, we are not in a mood to study. But then if you want something, you have to be disciplined and you have to start early, because it is always better to start early than after the notification comes, as you have very limited time left at that time. So जितने जल्दी हो सके अपने गोल के लिए, अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है. Start with small steps towards your preparation. If you are a fresher and you want to clear the examination in the first attempt, then there are some things which you should keep in mind. वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, टारगेटिंग द SEBI Grade A Legal Exam in 2025. First of all, know your syllabus. In your syllabus you have law, quants, reasoning, English, general awareness. ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं. लॉ के अलावा आपको quants, reasoning, English और general awareness भी पढ़ना होगा. Next is your exam pattern, phase 1 and phase 2 along with interview. बेसिकली ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है. फर्स्ट फेज जो होगा वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है. ये मैंने आपको 2024 के नोटिफिकेशन के कटिंग से बताया है. दिस इज व्हाट इज कंटिन्यूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड यही पैटर्न कंटिन्यू होगा. फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल होता है, सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फॉर 100 मार्क्स, 60 minutes duration and the cutoff is 30%. And for the paper 2, if you are given for legal stream, you will have MCQs from your law subjects only. That is also for 100 marks. Duration is 40 minutes and the cutoff is 40%. There is an aggregate cutoff of first phase of 40%. Remember, there is always a 1/4 mark cut for your wrong answer. Negative marking is present and there shall be cutoff of minimum 30% for paper 1. Sectional cutoff is not there. Cutoff of minimum 40% for paper 2 in phase 1. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना जरूरी है. सेकेंड फेज फॉर ऑल स्ट्रीम्स, अगेन फर्स्ट पेपर इज कॉमन, दैट इज ऑफ इंग्लिश एंड इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स. अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है, डेफिनेटली आपके पास ड्राफ्टिंग स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए. तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए. 100 marks, duration 60 minutes, cutoff 30%, weightage 1/3. If you are for the legal stream, second paper will be slightly different in the second phase. That will be 70 MCQs of 1 mark each on the specialized subject. That is law subjects पर 70 MCQs होंगे and there will be 3 descriptive questions of 10 marks each on the specialized subject related to the stream. And ये आपको answers type करने होंगे. It will be in typed format as the examination in online mode. 100 marks का ये भी आपका रहेगा 70 plus 30, 10 marks each रहेंगे descriptive answers, and the duration again will be 60 plus 60, 120 minutes. Cutoff will be 40%, weightage is 2/3. So this is your phase 2. पहले ये जो सेबी का एग्जाम है ये पूरा MCQ बेस्ड हुआ करता था, but then ये 2 बार से चेंज हुआ है. इसमें अभी डिस्क्रिप्टिव ऐड हुआ है लीगल सेक्शन के लिए भी, पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शन के लिए था. So now when you are preparing, you should have a strategy and you should prepare your plan of studies. This is very important. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप गलत जगह पे तीर मार रहे हैं.
इससे आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. Strategic preparation is very much important when you are preparing for any competitive examination. Time that is required for the preparation of this examination can be on an average 6 to 8 months. Again, it depends upon your individual capacities, your grasping power, your basic knowledge that you have gathered in LLB and also in quants, reasoning, English. ये सब पे ये depend करता है. You have to prepare for both the phases equally. English general awareness को आप daily reading और practice में inculcate कर सकते हैं. This will be developed gradually. QRE को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. बहुत से लोगों को डर होता है कि हमारा कॉन्स अच्छा नहीं है तो क्या हम सेबी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते. बट देन योर स्ट्रेटेजी हैज टू बी मोल्डेड लाइक दैट. स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सच सब्जेक्ट्स और गिव द टाइम ड्यूरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्ट टॉपिक्स. जैसे अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके सर पे नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट नहीं है, तो आप ऐसी डिफिकल्ट चीजों पे टाइम अभी डाल सकते हैं. एंड जहाँ पे आपका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है लॉ सब्जेक्ट्स का भी, सपोज आपका वीक एरिया है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ अगर आपका वीक एरिया है, तो अभी आप उसको पढ़ सकते हैं बिकॉज नाउ यू हैव टाइम. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज योर प्रेपरेशन. डिस्क्रिप्टिव आंसर स्किल इज डेवलप्ड विद प्रैक्टिस. अभी आपको पता है फेज 2 में आपको 2 पेपर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना है, इंग्लिश एज वेल एज लॉ. सो वो तो आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हो एंड उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है बिकॉज एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस आपके सामने होते हैं. बट इन डिस्क्रिप्टिव यू डोंट हैव द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू हैव टू राइट ऑन योर ओन एंड फॉर दैट यू रिक्वायर अ नंबर ऑफ in depth you require a number of more points as per your in depth knowledge of the subject. And one more thing that is important is expression. आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होनी जरूरी है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए. सो बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस. 50% टाइम हैज टू बी डिवोटेड फॉर बोथ द फेजेस. रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आप फेज 1 की ही पढ़ाई करें, अगर फेज 1 क्वालिफाई होता है तो आप फेज 2 के लिए पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको दोनों भी फेजेस के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है और अभी आपके पास टाइम है तो आप पहले एक फेज पिक कर लो. आई वुड सजेस्ट पहले आप फेज 2 के टॉपिक्स अभी कवर कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप ग्रेजुअली कर सकते हो. Start preparing with phase 2 first. This can be one suggestion, but again it depends upon to your individual capacities, availability of time with you. All these things are your individual points which you have to consider when you are making your own strategy. The type of questions. Now you also have to note down what type of questions you are going to face. MCQ based है तो उसकी preparation अलग तरीके से की जाती है. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है तो उसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है. जैसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज और प्रैक्टिस की जरूरत है. एमसीक्यूज के लिए आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है. जब आप पढ़ाई करते हो कौन से एरियाज हैं जहां से ट्रिकी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो, और एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस विद द सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो दैट आर आस्क्ड बिकॉज इन एमसीक्यूज दे आर गोइंग टू बैलेंस, दे आर गोइंग टू गिव यू सम टफ एमसीक्यूज एंड आल्सो सम सिंपल डायरेक्ट एमसीक्यूज. इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर चेक कीजिएगा. iExamB के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे. एंड इफ यू गो फॉर iExamB's ऑनलाइन कोर्स, all the material is available with us. We have MCQ booklets, we have previous year questions, we have descriptive questions. All these materials are available with us for your effective practice. Points to remember: mock tests are very, very important. Start practicing mock tests. As soon as you have some content in your mind, subject-wise chapter tests you can solve. You can solve questions, you can solve section-based tests, and also you can solve mock tests. पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करके देख लो कि किस तरीके का पैटर्न होता है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. देन यू गो फॉर योर स्टडीज एंड ग्रेजुअली बीच बीच में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिएगा. चॉक आउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए. प्रायोरिटाइज करो अभी से कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है. ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए. You have to go through it. Even if the unimportant areas you can take up whenever you have time now, but then you should know what is important and prioritize that. For cons, you have DI, bar graphs and table caselets, percentage, profit loss, simple interest, compound interest, ratio, proportion. ये सब basic cons आपका रहने ही वाला है. बाकी एग्जाम्स में से भी इसी तरीके का कॉन्स होता है एंड इसको आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप करना होगा.
रीजनिंग में भी कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, ये सब जैसे आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर प्रिपेयर करते होगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जनरली. एंड कोडेड ब्लड रिलेशनशिप्स, इनपुट आउटपुट, दिस इज अगेन अ वेरी लॉजिकल पेपर. मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिएगा. ये सारे रीजनिंग के सबसे सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं. इंग्लिश अगर आप देखोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये आप एक एक पैसेज लेकर सॉल्व कर सकते हो. इसको आप ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हो कि दिन में आपको 1 घंटा देना है. ऐसे आप अपने हिसाब से टाइमलाइन डिवाइड कर सकते हो. वोकैबुलरी है, पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, जम्बल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इसको आप ग्रेजुअली भी डिवाइड करके कर सकते हो कि 2 दिन में इंग्लिश नहीं निपटाना है. जैसे आप इंग्लिश को ग्रेजुअली डिवाइड करो बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ, इस तरीके से आप डिवाइड कर ही सकते हो. जनरल अवेयरनेस को भी उसी तरीके से कीजिएगा. बैंकिंग रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली इन द ट्रेंड, बैंकिंग, फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. डेफिनेटली उसके सोर्सेज, न्यूज़पेपर्स एंड बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है. इवन ऑन iExam's वेबसाइट आई वुड सजेस्ट टू चेक इट आउट. व्हाट आर द पॉलिसीज, लेटेस्ट पॉलिसीज अपकमिंग, RBI, क्रेडिट रेटिंग एक्सेट्रा, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है NPA की, all these things you have to be aware of. Now coming to the law syllabus as it is specified, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, CPC, TP, आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, jurisprudence, Latin terms, maxims, torts, consumer protection. एंड आप एक चीज यहाँ पे नोटिस अगर कर रहे होंगे कि वेटेजेस भी आपको दिए हुए हैं. यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि कौन से टॉपिक के लिए क्या वेटेज है. सो उसके हिसाब से भी आप अपने प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट एरियाज को कार्व आउट कर सकते हैं. सो यू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द वेटेज. सेबी जनरली स्टिक्स टू द वेटेज ओनली. फेज 2 के लिए भी अगर आप देखोगे 70 MCQs आने वाले हैं इन सारे सब्जेक्ट से एंड एट द सेम टाइम इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं. फेज 2 syllabus is criminal law, evidence, corporate law and securities law. So all of this which requires even in-depth understanding, you may start with this first and then you can take up phase 1 topics. So this can be convenient for you and you can be lifted from that burden that descriptive वाला part मेरा अभी भी बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. You can study this and ये तो phase 1 में भी वैसे भी कुछ topics common है ही. So फिर इस तरीके से आपका gradual preparation भी हो जाता है कि फेज 2 के लिए, सॉरी फेज 1 के लिए नहीं, फेज 2 के लिए जो टॉपिक्स है वो आप कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अच्छे से करना है. सो ये जो एरियाज हैं आप इसको अच्छे से डिवाइड कीजिए. फेज 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है. And then of course know your strengths and weaknesses. If you are knowing your strengths and weaknesses, then individually you can make a perfect strategy for yourself. मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस दिए हैं, इसमें से आपको क्या सूट होता है क्या सूट नहीं होता है, that you have to take a pen and paper, jot it down for yourself, make a plan for yourself and start preparing. Don't just wait for the notification to arrive, because after it arrives you have a very limited time with yourself. Right now there is no time stress with you. You can study according to your own comfort, but again you should have a plan and a timeline with you. Then only you will be able to cover your plan and you can capture the goal. So start your preparation. All the very best. iExam is there to help you out. Check out our online course for CB and other examinations available on our website. Prepare 50% faster with us at iExam. Reach out to us in case of queries. Download our app from the Google Play Store and check out the full course access available. Thank you, everybody.